Hello everyone. In this video we are going to discuss about the report of the internal working group to review the liquidity management framework. Okay, so recently an internal working group was formed to review the LMF liquidity management framework. This is the report of Reserve Bank of India for the month of July 2025, and here we can see a letter which was addressed to Shri Sanjay Malhotra, Mr. Sanjay Malhotra, the Governor of Reserve Bank of India. So it states that the IWG, this internal working group, was set up to assess the effectiveness of the existing LMF. So whatever LMF as of now, whatever framework related to liquidity management we are having as of now, we just want to assess it, including the WACR. What is WACR? Weighted average call rate. So we will be reviewing the weighted average call rate as well, and efficiency of the existing instruments, whether existing instruments are efficient enough to deal with the liquidity management, right? So that's what the sole purpose of this particular report was. And first we'll be discussing about the executive summary. We'll be discussing about each and everything in this video. The idea is not to make this video too long, but to cover it in a very crisp manner to make it more exam oriented. Okay, so in the executive summary we can see that executive summary, guys, is the most beautiful things. Why? Because the entire crux of the report you will be always finding in the executive summary. So even if you are not able to cover the entire report, it will be even fine if you just have a quick look at the executive summary. Or the best approach is download this PDF, watch this video, download this PDF, the report will be over. So here in this summary we can see that purpose of liquidity management. What is the purpose of managing liquidity? This is nothing but it is a operational arm of the monetary policy. Why monetary policy is existing? To manage the liquidity, right? हमारी कंट्री की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए तो ऑपरेटिंग पॉलिसी आती है. सो इट्स अ जॉब टू अलाइन द टारगेटेड मनी मार्केट रेट विच इज कॉल्ड एज WACR with the policy रेपो रेट. यही हमारा मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, टू अलाइन द WACR in line with policy repo rate, right? So this is the first step in the monetary policy transmission. If you are changing the repo rate, you will be transmitting, you want to transmit this particular change in the WACR also. You need to reflect this change in the WACR also, because the actual transactions are being taken place at WACR. बैंक्स में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है किस पे हो रहा है? WACR पे हो रहा है. आरबीआई किसको चेंज कर रही है? रेपो रेट को चेंज कर रही है. तो आरबीआई चाहते हैं कि हमारी रेपो रेट में चेंज होने की वजह से WACR पे इंपैक्ट पड़े, एंड दैट्स व्हाई that's what we are doing in the monetary policy, right? Now the current framework has seen multiple shocks and changes like COVID crisis, Ukraine war, global monetary tightening, structural changes in the economy like digital payment, right? Then just in time implementation in the banking system. So capital flows have been definitely volatile, and strong impact on the liquidity system we have seen since February 2020. So February 2020 से लेके अभी तक बहुत सारे changes हुए हैं जिससे हमारा liquidity management framework definitely test हुआ है. Let's directly come to the main recommendation. सबसे पहले आपको मेजर recommendation समझा देता हूं जो इस रिपोर्ट के अंदर है. उसके बाद आपको इनका मतलब समझा दूंगा कि what is the meaning of each and everything, right? And that's how we will be covering this entire report. सबसे पहली रिकमेंडेशन जो कमिटी ने दी, उन्होंने बोला कि WACR को चलने दो. लेट्स कीप ऑन कंटिन्यूइंग WCR एज द ऑपरेशनल टारगेट. सो दिस कमिटी हैज recommended to continue the WACR only as operating target. Keep the corridor system unchanged. So there is a corridor system that we need to study. I have discussed it in one of the Economic Times article as well in my finance current affairs, and we are going to discuss that corridor system of RBI in this particular video as well. Keeping the corridor system unchanged, that means the repo rate in the middle. There's a repo rate in the middle. The SDF आपके यहां पे होती है 25 basis point below, and MSF is at the top 25 basis point ऊपर from the repo rate, right? And that's what is called as corridor system. We'll be having definitely a deep discussion related to corridor system only. अभी मैं सिर्फ रिकमेंडेशन बता रहा हूं,
धीरे धीरे इन रिकमेंडेशंस का मतलब भी समझाऊंगा, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। रिप्लेस मेन 14-day VRR और VRRR विद द 7-day ऑपरेशन। यहां पे आरबीआई के इंटरनल ग्रुप ने रिकमेंड किया है कि आपका जो 14-day VRR होता है, वेरिएबल रेपो रेट, और VRRR होता है, उसको आप कितना कर दो, 7 डे कर दो इंस्टेड ऑफ 14 डेज, राइट। सो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो आप देख सकते हो। हमने 3 रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कस किया है। पहले समझ लेते हैं कॉरिडोर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क। पहली बात तो एक इंटरेस्ट रेट का फ्रेमवर्क है। देखो इंटरेस्ट रेट किस रेंज में घूमनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट अ कॉरिडोर सिस्टम। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क? सो इट हैज बीन डिसाइडेड कि सीलिंग क्या रखेंगे, एमएसएफ को सीलिंग रखेंगे, फ्लोर किसको रखेंगे, लोएस्ट रेट को, एसडीएफ को रखेंगे। तुम पैसा आरबीआई में जाके दोगे एसडीएफ में, तो तुमको फ्लोर रेट मिलेगी, एसडीएफ रेट मिलेगी। तुमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, राइट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो तुम कैसे लोगे, एमएसएफ से लोगे। यू कैन टेक मनी फ्रॉम वाया एमएसएफ फैसिलिटी इफ यू डू हैव ए अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली वो आपको हायर रेट पे मिलेगी। और बीच में आपकी रेपो रेट आती है। यही आपका कॉरिडोर सिस्टम होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा देता हूँ फटाफट से। हैव अ लुक एट दिस चार्ट। वी आर हैविंग रेपो रेट ऑफ 5.5% here in the middle layer of this corridor. We can have the SDF at 5.25% at the floor, और उसके बाद आपकी MSF आ गई वापस 25 बेसिस पॉइंट ऊपर। ये आपकी सीलिंग हो जाती है, राइट, ये आपकी सीलिंग हो जाती है। तो थिंक ऑफ इट एज अ स्पीडोमीटर, ओके। यू कैन ड्राइव द कार एट अ टॉप स्पीड ऑफ MSF. The lower speed will be SDF. However, the ideal rate will be repo rate. आरबीआई बोल रहा है कि इस स्पीड पे चलाओ गाड़ी, पर मैक्सिमम स्पीड आपकी कहां तक जा सकती है, एमएसएफ तक जा सकती है, और लोएस्ट स्पीड आपकी कहां जा सकती है, एसडीएफ से एसडीएफ तक जा सकती है। क्योंकि यहां पे अगर आपने इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ भी चेंजेस किए तो डेफिनेटली वो लिक्विडिटी पे इंपैक्ट करते हैं अल्टीमेटली। दैट्स व्हाई एक रेंज डिसाइडेड होनी चाहिए। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस वे. So don't you think that this looks like a corridor only? There's a ceiling of MSF, right? Here also we are having a ceiling of MSF. There's a floor of SDF. Here also we are having a floor of SDF, and in between there will be repo rate. Okay, so in between here also we are having a repo rate, and that's what the concept of corridor is all about. RBI has stated कि इसको अनचेंज रखो। इस इंटरनल ग्रुप ने क्या बोला है, आरबीआई को रिकमेंड क्या किया है कि इसको आप स्टेबल रखो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट रिकमेंडेशन? एटलीस्ट गिव 1 day एडवांस नोटिस फॉर लिक्विडिटी ऑपरेशन. लेट सपोज आरबीआई इज गोइंग टू डू अ लिक्विडिटी ऑपरेशन, सो एटलीस्ट गिव 1 day एडवांस नोटिस सो दैट all the financial institutions can prepare for this particular liquidity operation. At least give a 1 day advance notice. ऐसा नहीं सुबह उठ के कि आज हो रहा है, एक दिन पहले बता दो, ठीक है। That's the recommendation. Keep the variable rate auctions as preferred mode over the fixed rate. अब ये जो मेन रिकमेंडेशन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिपोर्ट तो ऑलरेडी 50-60 पेज की है, आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस पीडीएफ and you can read the things that I have already stated in this PDF. That will also be helpful. Okay. पूरी रिपोर्ट पढ़ के आपको अपना पूरा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आती रहती हैं। अब एक एआई पे भी रिपोर्ट आई है, उस पर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा आपका। तो यहाँ पे अगली रिकमेंडेशन क्या है? कीप द वेरिएबल रेट ऑक्शन एज प्रेफर्ड मोड. सो वी नीड टू प्रेफर द वेरिएबल रेट फॉर द ऑक्शन पर्पस एंड नॉट द फिक्स रेट. दैट वाज द रिकमेंडेशन यार. यूज लॉन्गर टेन्योर रेपो इफ मिसमैच परसिस्ट. अगर कोई मिसमैच है तो आप लॉन्गर टेन्योर के रेपोज भी यूज कर सकते हो. SPDs, standalone primary dealer, can participate in all the operations, repo operation. We have already seen this, I think, in March 2025. They have allowed the SPDs to participate in all the repo or all the repo operation. इस पे हमने circular भी पढ़ा था. But no MSF access is required. क्यों MSF का access नहीं मिला standalone primary dealer को? आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा. Maintain the 90% daily CRR requirement. No relaxation for this has been granted, right?
Let's talk about the standalone primary dealer as well. Now these standalone primary dealers are heavily dependent on the overnight segment of the money market. They are heavily dependent on the overnight segment of the money market. Why? Because that's the way they get the funding. That's how they get the funding. So they are heavily dependent on the overnight segment of the money market. ये largest borrower है call money market की अगर हम बात करें तो they are the largest borrower in the call money market and they are contributing 3/4 of the total borrowing. So जो total borrowing हो रही है उसकी 3/4 borrowing तो कौन कर रहा है? कॉल मनी मार्केट ही अकेला. कॉल मनी मार्केट की 3/4 borrowing तो अकेला स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ही कर लेता है. So these SPDs are already allowed to participate in all the repo operations irrespective of the tenure, that too with effect from March 2025. And this particular news we have covered in the finance current affairs session as well as the RBI circulars related to March month कि SPDs को already allow है participate करना in all the repo operations. The group also felt that SPDs may not be given the access to MSF. SPDs को MSF का access नहीं मिलना चाहिए. क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज बैंक की तरह उनके कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट तो होते नहीं है, नॉर दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अनफोर्सीन पेमेंट ऑब्लिगेशंस बियॉन्ड दी मार्केट आवर्स लाइक बैंक्स, राइट. तो इसलिए यहाँ पे इमीडिएट लिक्विडिटी के अर्जेंट फंडिंग की जरूरत उनको पड़नी नहीं चाहिए. इस रिपोर्ट ने ऐसा कंक्लूड किया और यही आगे रिकमेंड किया कि यार एसपीडीज को आप रेपो फैसिलिटी दे दो, आप सारी फैसिलिटीज उनको दे दो रिलेटेड टू ऑल द repo operations, but not for the MSF, because just not like that banks, they don't operate like banks, they don't have a unforeseen payment obligations beyond the market hours, plus neither they are having the reserve requirements here. तो उनको immediate पैसे की जरूरत ही कहाँ है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है. ओके, नाउ दिस रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स. हम एक एक करके यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एक एक पार्ट को. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जनरल चीजें लिखी हुई है. लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या चीज है? इट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. भाई मॉनेटरी पॉलिसी लाते ही इसलिए ताकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट को ऑपरेट कर पाए, राइट. लिक्विडिटी ऑपरेशन को सही कर पाए. सो दैट्स अ ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी intended to transmit the impulse of monetary policy action. Whatever monetary policy committee meeting is deciding here, they want to transmit it to the call money market rate, right? To the call money market rate. वो चाहते हैं कि जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज हो वो कॉल मनी मार्केट रेट को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, राइट. विच इज द मार्केट फॉर द बैंक रिजर्व. तो बैंक रिजर्व का जो मार्केट होता है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजंस लेती है. सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रिक्वायर्स इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन. अगर आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन ही अच्छा नहीं हुआ सो क्या आप सक्सेसफुली मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन अच्छा नहीं है तो आप कॉल मनी मार्केट की रेट को हिट कर ही नहीं पाओगे, उसको इंपैक्ट कर ही नहीं पाओगे, राइट. सो दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन एज वी कैन सी हियर. So in the introduction in the introduction section, it was written that LMF liquidity management framework procedure is to transmit the monetary policy stance to the call money market. और उसके बाद हमको पूरा पीरियड बताया कि फरवरी 2020 से लेके आज तक काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं. लाइक बैंक्स नीड रिजर्व ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ RTGS फैसिलिटी 24/365. High volatility in the government balances because of just-in-time scheme funding. Then capital flow volatility impacting the liquidity. ये सारे यहाँ पे reasons दिए हैं, right? IWG informed to review effectiveness. So IWG को क्यों form किया था? Effectiveness review करने के लिए कि WACR as a target range is fine or not. First check that. Then effectiveness of the tools. Whatever tools we are having, ये effective भी है कि नहीं है? पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी इन दी LAF एंड अदर इंप्रूवमेंट्स इफ रिक्वायर्ड. तो LAF के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेशन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कोई और भी इंप्रूवमेंट हो तो वो भी आप बता दो. इसलिए यहां पे IWG को फॉर्म किया गया था, राइट. टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द IWG. सो यही सारी चीजें लिखी हुई है जो हमने पढ़ी थी समराइज फॉर्म के अंदर. वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है. मैंने दोनों लगा दिए, स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए नोटिफिकेशन से हाईलाइट करके, प्लस उनको समराइज मैनर में भी दे दिया है ताकि आप दोनों जगह से पढ़ सको.
फिर उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट के अंदर इवोल्यूशन ऑफ द एलएमएफ दे रखा है, ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है मेरे हिसाब से। ये पूरी जर्नी दे रखी है कि हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हियर द 10-20 ईयर्स, 20 साल की उनकी पूरी जर्नी दे रखी है। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव समराइज्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर इटसेल्फ। थर्ड पार्ट के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? दे हैव स्टेटेड कीप द टारगेटेड रेट which is the WACR rate aligned to the repo rate, so others rate adjust smoothly. So WACR, देखो WACR क्या होता है? जो कॉल रेट होती है जिस पे बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं ये आपस में कॉल रेट पे ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। इन सब का अगर मैं वेटेड एवरेज निकाल दूं, सो दैट वेटेड एवरेज विल बी WACR, राइट? वेटेड एवरेज कॉल रेट। इतनी सिंपल सी चीज है। तो यहां पे बताया कि अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सरप्लस और डेफिसिट, दिस डिस्टॉर्ट्स द मार्केट बिहेवियर। सो सरप्लस और डेफिसिट बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो मार्केट बिहेवियर को थोड़ा डिस्टॉर्ट करता है। यहाँ पे कीपिंग द WACR अलाइंड विद द रेपो रेट का डिसीजन लिया था इस पर्टिकुलर कमेटी ने, ये रिकमेंडेशन दिया है। एनकरेज द बैंक टू बैंक ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन द RBI, सो डोंट हैव अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन द RBI बट टू एनकरेज द बैंक टू बैंक ट्रेडिंग। अच्छा, आप देखो LMF भी दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ LMF। सो LMF के भी देयर आर 2 टाइप्स हियर। फर्स्ट वन इज द कॉरिडोर सिस्टम जो हम इंडिया के अंदर मेंटेन करते हैं, सेकंड वन इज द फ्लोर सिस्टम। ठीक है, अब बहुत डिटेल में देखो हर चीज गिवन है रिपोर्ट में, पर मैंने आपके लिए यहाँ पे समराइज कर दिया है ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। कॉरिडोर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे सीलिंग और फ्लोर डिसाइड करते हैं और बीच में रेपो रेट होती है, ऊपर MSF होती है, आपकी सीलिंग पे MSF होती है और आपके फ्लोर पे क्या होती है? SDF होती है, बीच में रेपो रेट होती है। दैट इज द सिस्टम वी फॉलो इन इंडिया। हाउएवर मेनी कंट्रीज फॉलो द फ्लोर सिस्टम एज वेल, सो ओनली फ्लोर रेट इज मेंटेन। लेट सपोज आप सिर्फ SDF मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे एंड द पॉलिसी रेट इज द सेम एज द फ्लोर रेट, तो यहाँ पे आप रेपो रेट और SDF को बराबर रखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे काफी सारी कंट्रीज करती है। सेंट्रल बैंक्स कीप्स द plenty of liquidity. Why they are keeping of plenty of liquidity? So overnight rates naturally stay at the floor rate. देखो जितनी ज्यादा आप लिक्विडिटी रखोगे मार्केट में उतना जो आपकी कॉल रेट होगी, है ना, जितनी भी आपकी कॉल रेट्स होगी, ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटीज होंगी, वो सब ऑलरेडी आपकी कम रेट पे चल रही होगी, आपकी फ्लोर रेट के पास ही चल रही होगी। अगर मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है सो कोई क्यों एक दूसरे से ओवरनाइट लेंडिंग फैसिलिटी लेगा? पहली बात तो, और लेगा भी तो भी क्यों बहुत ज्यादा ब्याज देगा, राइट? सो ये सेकंड है। ये दूसरा टाइप है। हम कौन सा फॉलो करते हैं? कॉरिडोर सिस्टम फॉलो करते हैं। टारगेट रेट क्या रहनी चाहिए वो दे रखा है, तो ये वापस वही का वही है। आपका कॉरिडोर सिस्टम जो टारगेट रेट है आप इसको पढ़ सकते हो, सेम चीज है, कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, so what is the system here in the corridor is, let's suppose we are having a liquidity deficit in the country, we are having a liquidity deficit. So what RBI will do is they will try to meet up this deficit at the ceiling rate, which is MSF. So if you are having any kind of liquidity deficit, then definitely RBI will be happy to lend you at MSF. However, if there is a liquidity surplus in the market, RBI can take that liquidity out of the market. They can absorb the liquidity at the floor rate, which is the SDF. And that's how it works in India, right? In the next part, we are having the overview of the money market. Okay, so in the report it has been stated that the overnight market is as of now 5 lakh crore daily. That's the size of the overnight market as of now in India. Tri-party repo 70%, market repo 28%, and call money is 2%. That's the bifurcation of this particular overnight market. Call money market. This is a uncollateralized market. Banks and SPDs, standalone primary dealers, are the participants here. So यहाँ जनरली कोई कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। बैंक्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स यहाँ पे जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। SPDs here are the major borrowers. सबसे मेजर बोरोअर कौन है? कॉल मनी मार्केट के SPDs है। कोऑपरेटिव बैंक्स ये मेजर लेंडर है। तो कॉल मनी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लेंडिंग कौन करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। सबसे ज्यादा बोरोइंग कौन करते हैं?
ये आपको याद रखना है। एसपीडीज, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, यहां पे सबसे ज्यादा बोरो करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। ठीक है। शिफ्ट टू एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म इंप्रूव दी ट्रांसपेरेंसी। अगेन वी हैव शिफ्टेड टू दी NDS call platform negotiated dealing system call. This is for the call money market. Okay, this has also increased the transparency. Here we can see the composition of the overnight money market volume. Tri-party repo जो है वो major share लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं. So it's more than 70% share. We can see that 70% का share यहाँ tri-party repo के पास है. फिर उसके बाद market repo के पास है, blue वाला line जो है आपका, और सबसे कम share कॉल का है। ओके, कॉल मनी का सबसे कम शेयर है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉल मनी मार्केट देन इट इज नथिंग बट अ कोलेटरलाइज्ड मार्केट फॉर द बैंक रिजर्व्स। एसपीडीज आर ऑल्सो परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट। सो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने देखा कि उसके मेजर बोरोवर्स कौन है? एसपीडीज है। और कोऑपरेटिव बैंक्स कौन है? मेजर लेंडर्स हैं। पैसा आ कहां से रहा है? कोऑपरेटिव बैंक्स के पास से आ रहा है, और जा कहां से रहा है? मेजरली एसपीडीज के पास जा रहा है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया हुआ है। Here we can see in the chart as well. So this is for the borrowers. We can see that 76% of the amount is going to the SPDs. They are borrowing it. And if we talk about the lenders, 45% of it is coming from the cooperative banks. They are lending basically to the SPDs is what we can conclude on a majority basis, right? मार्केट वॉल्यूम भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2025 के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, राइट? सो इट रेंजेस अराउंड 9,000 करोड़ टू 15,000 करोड़। ओके, ट्रेडिंग वेन्यू एंड सेटलमेंट, प्राइमरी ट्रेडिंग वेन्यू फॉर कॉल मनी मार्केट ट्रांजैक्शन। इफ यू वांट टू ट्रेड इन कॉल मनी मार्केट ट्रांजैक्शन देन negotiated dealing system call platform is already there. Okay, so you need to remember the name of this particular platform as well. Overview of the money market. If we talk about money market, then we are having several instruments here like tri-party. We are having market repo as well. Tri-party is very straight. Market repo आपको पता ही है, repo transactions क्या होते हैं? Tri-party repo के अंदर again there is a lending transaction. However, the security is being managed by a third party. That's why we call it as tri-party repo. तो अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे दे रही है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को सिक्योरिटीज दे रही है, कोलेटरल दे रही है, तो दोनों में से कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखेगा। कौन रखेगा? थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी रखेंगी। जो इसको कौन परमिटेड है? जो CCIL परमिटेड है जिस चीज के लिए, राइट? सो इट इज कोलेटरलाइज्ड। लार्जेस्ट सेगमेंट बोल सकते हैं हम इसको, प्लस म्यूचुअल फंड्स। वाई लार्जेस्ट सेगमेंट? बिकॉज 70% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ट्राई पार्टी रेपो ओनली। म्यूचुअल फंड्स मेजर लेंडर्स हैं, जो मेन लेंडिंग हो रही है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो रही है, और प्राइमरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो लार्जेस्ट बोरोवर्स हैं यहाँ पे। तो मेजर पैसा आ कहां से रहा है? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है ट्राई पार्टी रेपो के अंदर, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स लार्जेस्ट बोरोवर्स हैं इसके। ठीक है, ट्रेप्स पे ट्रेड करता है ये। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म प्लस इट इज सेटल्ड वाया CCIL. सो दे आर एक्टिंग एज द थर्ड पार्टी एजेंसी हु आर कीपिंग द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर एंड लेंडर, राइट? देन देयर इज मार्केट रेपो, अगेन इट इज ऑल्सो कोलेटरलाइज्ड। एसपीडीज और फॉरेन बैंक्स जो हैं वो सबसे बड़े बोरोवर्स हैं। सबसे ज्यादा पैसा यहां से कौन लेते हैं? एसपीडीज और फॉरेन बैंक्स। अगेन मेन लेंडर्स कौन है? म्यूचुअल फंड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मनी मार्केट के अंदर जो मेजर पैसा आ रहा है ट्राई पार्टी और मार्केट रेपो में, वो आ रहा है म्यूचुअल फंड से। जा कर रहा है ट्राई पार्टी के अंदर, जा रहा है PSBs में, और मार्केट रेपो के थ्रू कहां पे जा रहा है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर और फॉरेन बैंक्स के अंदर। हियर वी कैन हैव अ लुक एट द borrower versus lender ratio as well. So the major borrowers are 46% of the borrowers are your PSBs, right? 46% of the borrowers are your PSBs, and if we talk about the lenders, then 66% पैसा कहां से आ रहा है? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है। ओके, ट्रेडिंग वॉल्यूम की भी बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल सकते हैं आपके। ओके, द ट्रेडिंग वेन्यू, ट्रेडिंग वेन्यू की बात करें और सेटलमेंट की बात करें तो वेन्यू कहां पे है इसका? कहां पे ट्रेड हो रहा है? बेसिकली फॉर ट्राई पार्टी ट्रांजैक्शन देयर इज अ सेपरेट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम, ट्रेप्स भी बोलते हैं। तो कभी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो खोलोगे तो उसके अंदर कैश के अंदर या मनी के अंदर आपको वहां पे ट्रेप्स लिखा हुआ दिखेगा। ओके, so they are keeping the money in the short term securities market, basically the money market, to earn a normal amount of interest here, right?
सो यहाँ एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग होती है प्लेटफॉर्म्स की. ऑल द ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड थ्रू CCIL विच इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, फिर उसके बाद मार्केट रेपो की अगर हम बात करें, ये भी कोलेटरलाइज्ड है. इसकी हमने बात कर ली कि म्यूचुअल फंड्स मेन लेंडर है और मेन बोरोअर कौन है, SPDs और फॉरेन बैंक्स है, राइट. इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्रोम्स है. CROMS इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच मार्केट रेपोज आर ट्रेडेड एंड अगेन सेटल्ड वाया CCIL ओनली. सेटलमेंट CCIL पे ही होता है. ओके, अच्छा, एक क्रोम्स का फुल फॉर्म क्या है, क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम. ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. ओके, दीज थिंग्स यू नीड टू नो. Have a look at the share as well. The major borrower here is SPDs 43% and the foreign banks again say 43 or 29% respectively, and the major lender is again mutual fund followed by foreign banks. Okay. Now in the fifth part of the report there are some issues and recommendation. तो recommendation हम already discuss कर चुके हैं. इश्यूज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे कि क्यों रिकमेंडेशन दी गई थी. ओके, और क्या रिकमेंडेशन दी गई थी. क्या रिकमेंडेशन मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बता दी थी कि क्या क्या रिकमेंड किया है. अगर उतना भी आप लोग इस रिपोर्ट में से पढ़ लेते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वरना ये 40 मिनट्स का वीडियो है, तो इसके थ्रू भी अगर आप कवर करना चाहो PDF डाउनलोड करके लेक्चर देख के, वो भी पॉसिबिलिटी है. आई वोंट सजेस्ट यू कि पूरी की पूरी 50-60 पेज की रिपोर्ट पढ़ना, आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पढ़ने से, राइट. जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमको उन पे फोकस करना है. एट द सेम टाइम जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही है उनका क्रक्स भी हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए. ओके, सो डोंट वॉच लॉन्ग वीडियोस और डोंट ट्राई टू रीड लाइन बाय लाइन दैट रिपोर्ट बिकॉज we don't have adequate time, right? We are having a shortage of time always in the competitive examination, and that's the best approach कि आप हर चीज को short manner में, summary manner में पढ़ो rather than going into too much detail of each and everything which is not required for the examination perspective. पूरा का पूरा एग्जाम इस रिपोर्ट से नहीं आने वाला है. ये चीज हमेशा हमको माइंड में रखनी है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस. जब भी बैलेंस ब्रेक करोगे तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी, राइट. So in the fifth part of the report, we can see liquidity management framework, issues and recommendation. What were some of the issues and what were the recommendations given by the internal working committee, right? WACR share in the overnight volume fell. So earlier it used to be 16%. Now in 24-25 it is just 2%. But WACR only segment fully under the RBI regulation. सिर्फ WACR ही एक ऐसी चीज है जो बैंक्स और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के थ्रू जो डीलिंग होती है, लेंडिंग होती है ओवरनाइट बेसिस पे, तो वही एक ऐसा सेगमेंट है जो दैट इज फुली रेगुलेटेड बाय आरबीआई. सो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद कोलेटरलाइज्ड रेट्स. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दैट टू विद कोलेटरलाइज्ड रेट्स. गुड सिग्नल ट्रांसमिशन टू ट्रेजरी बिल्स, CPs एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. whenever we try to impact the WACR via changing the repo rate, it also impacts the treasury bill rate, कमर्शियल पेपर रेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट. तो ऐसा इस कमेटी ने बोला है कि आपका जो WACR है उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर इट इज स्टिल इंपैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग लाइक टी बिल्स, प्लस इट इज फुली रेगुलेटेड बाय आरबीआई. दैट्स द मेन थिंग. So recommendation is to keep the WACR as the operating target, track secured rates too. Secured rates भी track करो और साथ में आपका जो WACR है वो कंटिन्यू रहेगा आगे आने वाले टाइम तक. और WACR ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ. बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लेंडिंग कर रहे हैं कॉल रेट, कॉल मनी मार्केट के अंदर. अब मैं एक बैंक हूँ, मैंने 6% पे पैसा दिया, आपने आगे 7% पे दिया, कुछ 6.5% पे गया, कुछ 5.5% पे गया. सो कैन आई से दैट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ट्रांजैक्टिंग इन द कॉल मनी मार्केट एट डिफरेंट रेट्स. बिकॉज ऑफ दैट वी नीड अ वेटेड एवरेज रेट. वही वेटेड एवरेज रेट आपका यहाँ पे WACR होता है. सारे लेंडिंग एक्टिविटीज का अगर मैं टोटल करके उसको वेट्स देके एवरेज निकालूं, दैट इज WACR. Here is a trend in the composition of the overnight money market. We can see that it is completely dominated by the tri-party repo, right? It's completely dominated by the tri-party repo followed by the market repo and call market. There's a view that collateralized money market rates may also be considered for the operating target. However, these segments
feature a notable presence of the non-banking entities such as mutual funds, insurance companies, and pension funds. Transaction in these settlements may not reflect the dynamic of the interbank market for reserves, and also these entities are not regulated by Reserve Bank of India. तो यहाँ पे क्या बात हुई थी कि अगर आप कोलेटरलाइज मनी मार्केट का रेट कंसिडर करना चाहते हो ओवर एंड अबाउट WACR, अभी सब कुछ किस पे बेस्ड है? WACR पे बेस्ड है. अगर आप कोलेटरलाइज मनी मार्केट का रेट लेना चाहते हो तो दैट इज हाईली डोमिनेटेड बाय म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड, जो कि डायरेक्टली RBI के कंट्रोल में भी नहीं आता है. सो दैट्स व्हाई द रिकमेंडेशन शेयर्ड बाय द इंटरनल वर्किंग ग्रुप वाज कि आप WACR को कंटिन्यू रखो. At least it is driven by banking institutions and other financial institutions, right? Corridor system क्या होता है हमने डिस्कस कर ही लिया, and they are keeping the current systemic corridor as well. Okay, so there is no change as of now in the corridor system. We are going to continue whatever we are already doing as of now. Skewness and liquidity. Third was skewness and liquidity even in the deficit time. Some banks parked large funds in the SDF while other borrowed. So that shows the skewness in liquidity. There is a problem of volatility here, or I can say that uneven distribution is what skewness is all about, right? There is uneven distribution. Why? Some banks are having enough liquidity even in the deficit time. Even in the deficit time, some banks are having adequate liquidity and they are parking the money in the SDF. That's strange, right? And बेचारे कुछ banks उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? बोरोइंग कर रहे हैं. सो इससे स्क्यूनेस पता चलती है, इससे अनइवननेस पता चलती है, राइट? लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि कुछ बैंक्स के पास हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी रहती है इवन इन द डेफिसिट टाइम्स, वेराज दूसरे बैंकों के पास नहीं रहती है लिक्विडिटी इन द डेफिसिट टाइम्स, दे नीड टू बोरो. सो ये मिसमैच है. दिस इज अ लिक्विडिटी मिसमैच दैट वी आर हैविंग इन द इकोनॉमी एज ऑफ नाउ. ओके, Then 24 into 365 days payment increase the precautionary balances here. तो आपको यहाँ पे balances maintain करके रखने पड़ते हैं. Extension of call money market timing to 7 PM. ये भी हमने एक सर्कुलर के अंदर पढ़ा था, जुलाई 2025 से ही इंप्लीमेंट हुआ था. एक्सटेंशन ऑफ दी कॉल मनी मार्केट टाइमिंग, उनका टाइमिंग बढ़ा के 7 PM तक कर दिया था. दिस विल ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प द लिक्विडिटी डेफिसिट इश्यूज. अब रिपोर्ट में दे रखा है कि देखो इमर्जिंग कंट्रीज जो होती है आर मोर ऑफन ससेप्टेबल टू लार्ज कैपिटल फ्लो शॉक्स. अ वाइडर कॉरिडोर सिस्टम इज मोर सुटेबल. तो ये कॉरिडोर सिस्टम जो है आपका SDF का और MSF का, वो बोल रहे हैं इसको वाइड रखो. अगर आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो इसको वाइड रखो. उससे क्या होने वाला है? आप शॉक्स एब्जॉर्ब कर पाओगे, लार्ज कैपिटल फ्लोज के जो शॉक्स आते हैं वो आप एब्जॉर्ब कर पाओगे. सो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रहेगा आपको ऑपरेट करने में आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. हाउएवर, बिकॉज ऑफ द वाइडर रेंज देयर विल बी वोलेटिलिटी इन दी मनी मार्केट रेट. ऑब्वियसली बात है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी. कोई कितना चार्ज कर रहा है, कोई कितना चार्ज कर रहा है, देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी. जितना बड़ा कॉरिडोर उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, राइट? सो ये बेसिकली आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज शेयर कर दिया था रिलेटेड टू लार्ज कॉरिडोर इन द रिपोर्ट. देन ऑपरेशनल टूल किट, अगेन द मेन 14 डे, अभी क्या होता है 14 डे VRR और VRRR ऑप्शंस होते हैं ड्यू टू लिक्विडिटी फोरकास्टिंग डिफिकल्टी. ओके, बट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस रिपोर्ट इनको शॉर्टर किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है डिस्पाइट ऑफ द बेटर यील्ड इन 14 डे VRRR. नो डाउट VRRR 14 के अंदर बेटर यील्ड्स मिलती है, स्टिल आप इनको शॉर्ट कर दो, ऐसा यहाँ पर रिकमेंडेशन किया जा रहा है. सो मेक दिस 14 डे ओवरनाइट फंडिंग ऑफ दिस 14 डे टू 7 डे VRR और VRRR मेन ऑपरेशन. तो इसको 14 को क्या कर दो आप 7 डे का ऑपरेशन कर दो. अगर आप बता रहे हो कि आप ये ऑपरेशन करने वाले हो तो एटलीस्ट एक दिन पहले तो बताओ, ये हमने पढ़ा था. वेरिएबल रेट ऑप्शंस को कंटिन्यू करो रादर देन फिक्स्ड रेट ऑप्शन. देखो फिक्स्ड के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, वेरिएबल इज वेरी मच कैपेबल टू डील विद एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी. कोई अनसर्टेनिटी भी आती है तो वेरिएबल रेट उसको आराम से अकोमोडेट कर पाती है. लॉन्गर टेन्योर रेपो को भी आप यूज कर सकते हो अगर मिसमैच आ रहे हैं लॉन्ग रन में. अगर लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी मिसमैच आ रहे हैं तो आप लॉन्ग टेन्योर रेपोस को भी प्रेफर कर सकते हो. ऐसा ये सब रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था. ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये जो 14 डे के जो ऑप्शंस होते हैं इनसे क्या होती है, ट्रांजिएंट लिक्विडिटी, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है, ठीक है, टेम्पररी लिक्विडिटी भी जिसको हम बोलते हैं, वो
फुलफिल होती है, राइट, वो सॉर्ट होती है। अब क्योंकि इसके अंदर लो पार्टिसिपेशन आ रहा था, बिकॉज देयर वाज लोअर पार्टिसिपेशन। सर 14 से 7 पे क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन तो बताया नहीं, देखो अभी बता देता हूं। 14 पे लोअर पार्टिसिपेशन आता है, ठीक है, प्लस लोअर पार्टिसिपेशन आने की वजह से जो ट्रांजिएंट लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है वो ये 14 वाला ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। प्लस देयर आर सम फ्रिक्शनल फैक्टर्स एज वेल, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैश बैलेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स रिसीट्स। अब क्वार्टरली एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है, मंथली जीएसटी का पेमेंट जाता है गवर्नमेंट को, सैलरी पेंशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इस वजह से क्या है, फोर्टनाइटली जो ये आपका 14 डेज वाला है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। सो दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ मोर शॉर्टर टेन्योर ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ दिस 14 डे ऑपरेशन। वहां पे बोला कि यार 7 डेज में लिक्विडिटी, ट्रांजिएंट लिक्विडिटी ज्यादा बेटर मैनेज हो पाएगी क्योंकि हाई पार्टिसिपेशन आएगा, प्लस ये फ्रिक्शनल फैक्टर्स की वजह से भी बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, सो दे हैव रिकमेंडेड 7 डेज इंस्टेड ऑफ 14। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है ये आपको याद रखना चाहिए, राइट। वैसे मैंने आपको समराइज फॉर्म में पहले ही सब कुछ चीजें बता दी। अगर आप स्टार्टिंग के 10 पेज भी पीपीटी के अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, और ये लेक्चर देख लेते हो, तो ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे हमको नहीं देना है इस रिपोर्ट को, ठीक है। तो ग्रुप ने यही रिकमेंड किया है कि वेरिएबल रेट को कंटिन्यू करो यहाँ पे, ठीक है, अंडर दी LAF, और हैंडलिंग फॉर सच लिक्विडिटी मिसमैचेस द ग्रुप रिकमेंड्स दी रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन फॉर लॉन्गर टेन्योर एज वेल। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का कुछ शॉर्टेज प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन का लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लॉन्ग रेपो रेट से उसको लॉन्ग टेन्योर वाले रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन से उसको मैनेज करो। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की बात करी थी, अब वो तो ऑलरेडी सारे रेपो ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर MSF में नहीं करेंगे, ये भी बात करी थी। व्हाई? बिकॉज यार तुम तो एसपीडीज हो, तुमको कौन सा रिजर्व रखना, नहीं रखना। कोई भी लेट आवर में तुम्हारा कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह, तो व्हाई डू यू नीड द फैसिलिटी ऑफ MSF? जब इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट नहीं हो रहा, रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं रखनी, कभी होता है ना रिजर्व का एकदम से शॉर्टफॉल आ गया तो MSF काम आ जाता है, तुम्हारे क्या काम का, तो तुमको नीड नहीं है, ऐसा रिकमेंडेशन किया है इस रिपोर्ट में, ठीक है। एवरेजिंग ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट, करंटली वी आर मेंटेनिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द CRR डेली एवरेज। Lowering may increase the volatility, बैंक रेयरली गो बिलो से 95%, तो बैंक ने यहाँ पे, RBI ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि बिलो 95% वैसे भी नहीं जा रहे हो, राइट। सो लेट्स कीप इट एट 90% ओनली, जो अभी चल रही है उसी को ही चलने देते हैं। एंड दिस इज द समरी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी। सो आप डायरेक्टली ये समरी भी पढ़ सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी helpful if you are watching this video. And at the end of this session I have given you some of the important pointers that can be important from your examination perspective as well. इनको भी आप जरूर consider करना, okay? Plus at the end of this session I would like to tell you that we are offering flat 60% off on all the regulatory exam subscription. The code is IDAY. You can definitely avail this offer if you are looking for any kind of mentorship. कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर, इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर आई फ्रीक्वेंटली शेयर फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स, ओके, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आप कोई मेंटोरशिप चाहते हो तो ऑफर डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ओके, एंड इट इज वैलिड टिल 16th of August ओनली। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू so much फॉर showing so much of love and thank you। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।